Hello dear students, this is Muhammad Rashid, your math teacher from Hera Public School, Fadgudiya, Ambari, Azamgarh. Dear students, today I will teach class 3rd mathematics chapter number 1st, which is numbers beyond 999. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ऐसे नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो 1 से लेके 99 तक तो हैं, लेकिन उसके बाद जितने नंबर हैं उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. मीन्स नंबर बियॉन्ड 999. So let's recall something which we have already studied in previous classes. In previous classes you have learned about number name, ascending order, descending order, odd number, even number, greater than and less than. So I will clear all the things one by one. Here is one box, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वन बॉक्सेस को 10 टाइम्स यहाँ पे क्या किया गया है, पुट किया गया है. इफ आई आस्क हाउ मेनी boxes are here, you will answer these are 10 boxes or 10 cubes. So if I write 1 1 1 1 1 1 1 1 1 and 1, so how many times 1? You will say 10 times 1. So if I write 10 times 1 means 1 1 1 10 times, then what number we will get? The number will be 110. means 110. इसको दूसरे तरीके से समझते हैं. If I write 1 1 1 1 1, so if I ask how many ones in this series, you will say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are 10 ones. These are 10 ones. Or 1 10 मीन्स अगर 1 को हम बेटा 10 टाइम लिख दें तो कितना हो जाता है, 10 वंस हो जाता है. और 10 वंस को हम कहते हैं क्या है, 110. क्या कहते हैं, 110, जिसको हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, 10. क्लियर. 10 वंस मीन्स 110. 10 वंस मीन्स 110. एंड नाउ 10 टेंस. इफ आई राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 110, 210, 310. How many 10? 3 tens. And what would be the value of 3 tens? 30. Means 10 plus 10 plus 10 is equal to 30. If I write in same way 10 times, how many times? 10 times. 10 times. 10 times like this. 110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 19 and 10 tens. So 10 tens is equal to 100. Means 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 10 times 10. So 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 30 plus 10 40, 40 plus 10 50, 50 plus 10 60, 60 plus 10 70, 70 plus 10 80, 80 plus 10 90, 90 plus 10 is equal to 100. Means 10 tens is equal to 100. 100 इनको 10 टाइम, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 110, 210, 310, इसको कितनी बार लिख दे बेटा, 10 टाइम्स. तो क्या वैल्यू आती है, 100. सो हियर 100 ये क्या शो करता है, ये जो पूरा बॉक्स है किसको शो करता है, 100 को.
क्यों? क्योंकि हर कॉलम में एक कॉलम में कितने कितने क्यूब्स हैं? 10, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, सब कितनी बार है? 10 है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, 90 एंड 100 हो जाएगा। कंप्लीट जो आपका बॉक्स दिख रहा है या क्यूब दिख रहा है वो कितने को रिप्रेजेंट करता है? 100 को। एंड नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर नेम्स, राइट द नंबर नेम। क्वेश्चन नंबर ए 199, क्वेश्चन नंबर ए 199, सो 199 नंबर नेम। 199, अगर इसका हम नंबर नेम लिखें, इफ यू राइट नंबर नेम, सो दिस इज वंस प्लेस, दिस इज वंस प्लेस, this is tens place and this is 100 place. So we can say 100 100 and 9 tens. Why 9 tens? Because 9 is at the place of 10 place, 9 is at the place of tens place. So 9 tens plus 9 ones, 100, 9 tens, 9 ones. So 100, 9 tens means 9 time tens, 9 tens का मतलब 9 time tens, so 90, so 90 and 9 ones means 9, 9 ones means 9, 9 ones means 9 time ones, so 9. So the number name of 199 is 199. And 304, question number B 304. So this is ones place, this is tens place, this is hundreds place. 300 and we do not write tens, so 304, 304. तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 300 प्लस 0 टेंस प्लस 4 वंस, तो ये हो जाएगा 300 और 0 टेंस है तो 0 ही रहेगा, उसको हम लेंगे नहीं। और वंस कितनी टाइम है? वंस कितना है? 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। सो 304 इसका क्या हो जाएगा? नंबर नेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट 26, 87, 19, 145, 52 in ascending order. In which order? We have to write these series in ascending order. What is the mean of ascending order? You know what is the mean of ascending order? Ascending order means smallest to largest, smallest to largest. सपोज दैट इसको ऐसे समझते हैं, अगर ऐसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 फिर सबसे बड़ा। ये कौन सा ऑर्डर है बेटा? ये कौन सा ऑर्डर है? ये है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, सो सपोज दैट 2, 5, 1, 3, 4, 9, 8. You have to write in ascending order. So how will you write? So you have to put smallest number first. After that, so which one is the smallest number in this series? This is 1, and after that 2, after that 3, after that 4,
after that 5, after that 8, and after that 9. So smallest to लार्जेस्ट मीन्स छोटे से बड़े की तरफ अगर हम बढ़े तो वो ऑर्डर कौन सा होता है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर. नाउ वी विल लर्न अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, largest to smallest. Suppose that you have many sticks of different sizes, then you have to adjust the stick like this way. So this is largest and this is smallest, this is largest and this is smallest. Then this order is called descending. This order is called descending order. Now it will clear with. Now we will learn about even number and odd number. Even number. First we learn about even number. What is even number? इवन नंबर होता है कि अगर हम नंबर को पेयर्स में लिख सकते हैं, पेयर्स में लिख सकें. जैसे हमारा 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है, इवन नंबर्स हैं. इनको हम पेयर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. किस फॉर्म में? पेयर्स, यानी इनका जोड़ा बन सकता है. या दूसरी डिफिनीशन इसकी क्या होती है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, विच आर divisible by 2 are called even numbers. मीन्स ऐसे नंबर्स जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करें, जिनको हम किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर. जैसे 2 का मतलब क्या है, कोई 2 ऑब्जेक्ट है. 4 का मतलब 1 2 3 4. 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6. 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8. अब देखो इनका पेयर बनाते हैं. इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, एंड इसका पेयर बन गया, एंड इसका पेयर बन गया. 3 पेयर यहाँ पे बन गए. यहाँ पे एक पेयर बन गया, यहाँ पे एक पेयर बन गया, यहाँ पे एक पेयर बन गया, यहाँ पे एक पेयर बन गया. कोई छूटा इसमें? नहीं छूटा ना. तो ये क्या है, इवन नंबर है. ये क्या है, इवन नंबर है. या अगर 4 में हम 2 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी कोई रिमाइंडर इसमें नहीं बचना चाहिए. सो हाउ मेनी टाइम वी विल डिवाइड, 2 टाइम. 2 2 जा 4 एंड इट कम्प्लीटली डिवाइड. सो रिमाइंडर 0. रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. टेक अनदर एग्जाम्पल, 12 ले लेते हैं. 12 तो 2 से 12 में डिवाइड करें कितनी टाइम जाएगा बेटा, 6 टाइम. 2 6 जा 12. रिमाइंडर कुछ आया, नथिंग. मीन्स रिमाइंडर क्या हमारा है, 0. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन नंबर. नाउ वी विल लर्न अबाउट ऑड नंबर. ऑड नंबर. व्हाट इज ऑड नंबर? ऑड नंबर आर दोज नंबर विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पेयर. मीन्स हम उसको पेयर्स के फॉर्म में ना लिख सकें. जैसे 1 3 5 7 9 11. ये बेटा क्या है, ऑड नंबर है. जैसे यहाँ पे 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. देखते हैं यहाँ पेयर बना, नहीं बना. यहाँ पे तो पेयर बन रहा है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है. ये क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है. यानी कि इस नंबर का कम्प्लीटली पेयर नहीं बन रहा है. यहाँ पे एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, तीसरा नंबर क्या हुआ, छूट गया. यहाँ पे एक पेयर बना, यहाँ पे एक पेयर बना, यहाँ पे एक पेयर बना, लेकिन ये क्या हुआ, छूट गया. तो ये क्या है, ऑड नंबर, जहाँ पे पेयर ना बन सके. ठीक है, कम्प्लीटली पेयर ना बन सके. या इसकी दूसरी डिफिनेशन है बेटा, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर. जैसे 3 लेते हैं बेटा. 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2,
यहाँ पे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा 1, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 1, जबकि होना क्या चाहिए था, रिमाइंडर 0 होना चाहिए था अगर ये इवन नंबर होता। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 से 7 में डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6 एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट द नंबर वी गेट 1 एज अ रिमाइंडर। ओके, यानी कि ये हर स्टेप में क्या कर रहा है, रिमाइंडर को छोड़ दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर को हमने कैसे सीखा, जिसका पेयर ना बन सके या ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, वो क्या कर दे, रिमाइंडर को छोड़ दें, वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन और लेस देन आर इक्वल टू इन द बॉक्स। ठीक है बेटा, इसको समझते हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन को समझते हैं। इसमें हम जनरली एक सिंबल यूज करते हैं ऐसे, ये क्या है, ऐसे होता है ग्रेटर देन या लेस देन। इसका मतलब होता है बेटा, ये मान लेते हैं इसकी क्या है, टेल है, क्या है, टेल्स है, और ये क्या है इसका माउथ, ये क्या है इसका माउथ है। ठीक, ये क्या है, टेल्स है, इसकी पूंछ ही है, इसका मुंह है। तो जिधर ये माउथ ओपन रहता है, जिधर ये माउथ ओपन रहता है, जिधर ये माउथ ओपन रहता है, वो नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है, क्या होता है, ग्रेटर होता है। और जिधर ये पूंछ होती है वो नंबर क्या होता है, लेस होता है, ये नंबर क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रेट होता है, ये क्या होता है, लेस होता है। जैसे 2 5, अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, एक बॉक्स ड्रा करता हूँ, और इसमें बताना है इसी सिंबल का यूज करके कि ये 2 क्या है, ग्रेटर है कि लेस है। तो 2 क्या है बेटा, 2 5 से कम है, ज्यादा है, तो 2 क्या है, 5 से कम है, तो पूंछ इधर हो जाएगी और इसका मुंह यानी माउथ इधर हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5। इसी को अगर ऐसे कर दूं, यहाँ पे 5 लिख दूं मैं, और यहाँ पे बॉक्स बना दूं, एम्प्टी बॉक्स बना दूं, और यहाँ पे 2 लिख दूं। अब इसको बताना है 5 क्या है, लेस है कि मोर है, लेस है कि मोर है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो 5 क्या है, 2 से बड़ा है, तो इसका माउथ इधर ओपन हो जाएगा। ओके, और टेल्स कहाँ चली गई, इधर चली गई। अब इसको लिखेंगे 5 इज मोर और ग्रेटर, इसको दोनों कैसे, तो मोर और ग्रेटर दोनों बोल सकते हैं। 5 इज मोर देन 2, सो ये लेस देन एंड मोर देन हो गया। ठीक है, दूसरे एग्जांपल समझते हैं, 136 129। अब इसमें ये बताना है कि 136 129 से ज़्यादा है या कम है। ओके, ज़्यादा है कि कम है, मोर है या लेस है। तो आप कहेंगे 136 क्या है, बड़ा है किससे, 129 से। तो माउथ किधर खुलेगा बेटा, माउथ इस साइड में खुलेगा, जो बड़ा होता है उस साइड में हम माउथ को खोल देंगे, जो छोटा होगा उधर क्या कर देंगे, उसकी टेल्स कर देंगे। सो ऐसे कर देंगे इसमें, तो माउथ इस साइड खुल गया, तो ये क्या है, उससे बड़ा है। अब इसको सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे, इसको सेंटेंस में लिखेंगे 136 इज मोर देन 129, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 136 इज ग्रेटर देन 129, ऐसे लिख सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट था लेस देन एंड मोर देन का, लेस देन एंड मोर देन का। सो इसमें आप इस एक्सरसाइज को आप अपने तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, तो आप अपने तरीके से इसमें लेस देन और मोर देन का साइन लगा दीजिएगा। इक्वल का मतलब होता है जब दोनों नंबर्स क्या हो, बराबर हो, जब दोनों नंबर्स क्या हो, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो वहां पे कौन सा नंबर, कौन सा साइन पुट करना है, कौन सा साइन पुट करना है, ये इक्वल वाला। तो जैसे 97 दोनों साइड है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल का साइन हम पुट कर देंगे। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म सबसे पहले समझते हैं एक्सपैंड का मतलब क्या होता है। एक्सपैंड का मतलब बेटा होता है कि किसी भी चीज़ को फैला देना, किसी भी चीज़ को फैला देना, बड़ा कर देना। तो एक्सपेंडेड फॉर्म यानी नंबर जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, फैला के बड़ा कर देंगे। या इसको ऐसे समझो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू को सम के फॉर्म में लिख देते हैं, नंबर्स के प्लेस वैल्यू को उनकी सम के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे 15,
15 को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो बेटा क्या लिखेंगे 10 + 5। तो ये क्या है 1s है, ये 10s है, तो ये क्या है इनकी प्लेस वैल्यू है। 10 पे क्या है 110 है और 5 पे क्या है 51 है, तो इसको 10 + 5 लिख दिया। अब 129 है तो ये हो जाएगा 1s, ये 10s, ये 100। 100 पे कितना है 100, तो इसको 100, ठीक है। 10s पे कितना है 2 10s है, 10s पे कितना है बेटा 2 10s है, तो 2 10s का मतलब 20, 2 10s का मतलब 20, एंड 1s पे कितना है 9 1s है, तो इसको लिख देंगे 9s। ये क्या है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं 1 2 3 9, ये नंबर है, तो ये हो जाएगा हमारा 1239। इसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो गया 1s 10s 100 1000, तो 1000 पे कितना है 1000, तो यहाँ पे लिखो 1000 प्लस 100 पे कितना है 200, इस पे लिखो 200 प्लस 10s पे कितना है 3 10s, 3 10s का मतलब 30 प्लस 1s पे कितना है 9, सो इसको लिखेंगे 9। ये हमारा क्या हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे। 399 से पहले क्या आता है, 399 से पहले जो नंबर आता है, विच नंबर कम्स बिफोर 399, सो वी पुट दैट नंबर। सो 399 से पहले कौन सा नंबर आता है, विच नंबर विल कम बिफोर 399, दैट नंबर इज 398। एंड क्वेश्चन नंबर बी, विच नंबर कम्स आफ्टर, इसका मतलब क्या होता है इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, विच नंबर कम्स आफ्टर, तो ये 870 है, दिस इज 870, एंड विच नंबर विल कम आफ्टर 870, दैट इज 871, एंड विच नंबर कम्स बिटवीन 471 एंड 473, मीन्स 471 और 473 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, उसके ठीक बीच में कौन सा नंबर आएगा, देन दैट नंबर इज 472। तो यहाँ पे कितना पढ़ेंगे 472 हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये आज आपकी पहली क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम 4 डिजिट्स नंबर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो जितनी भी एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन की है उसको आप अपनी फेयर कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे इसको कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।